Hello everyone, welcome to the next lecture on computer networks. The topic for today's discussion is TCP/IP, and further in TCP/IP we'll be discussing in detail addressing. Since the topic for today's discussion is too long, so I have decided to put it in two videos. So आज का जो lecture होगा that will be part 1 of this video for this topic, and in part 2 I'll be discussing in detail the further subtopics of addressing, that is subnetting and the packet frames for IPv version 4 and IPv version 6. So today मैं डिस्कस करूंगा TCP/IP में कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, ठीक है, बेसिक आइडिया मैं उसमें दूंगा, और जो एड्रेसिंग है एड्रेसिंग के बारे में हम थोड़ा आज जानेंगे, ठीक है. तो मूविंग ऑन, लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर. सो earlier we already had an OSM, but this TCP/IP, which stands for Transmission Control Protocol / Internet Protocol, is a protocol suite. That means it provides us with a large number of protocols that are actually implemented in our network, जो हमारे पास नेटवर्क में यूज होते हैं, जिनके हेल्प से हम जो ट्रांसमिशन है या अपनी कम्युनिकेशन है वो अचीव कर पाते हैं. दैट इज विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स दैट आर डिफाइंड in TCP/IP protocol suite, or which stands for Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Now here you can see, as compared, if we will compare this TCP/IP model or protocol suite with our model, you can see the 7 layers. That is, we can say number 1, then number 2, then number 3, then number 4, and number 5, 6, and 7 layers. Lekin in case of our TCP/IP, we have classified, or we have divided our model or protocol suite into only 1, 2, 3 and 4 layers, we can say. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हमने कंबाइन किया है, we have combined 5, 6 and 7 layers in a group, and we call it as an application layer. Then we have layer 4 as transport layer as it is, and we have network layer, which is also called as internet layer, and physical layer and data link layer here again are connected together, and they are called as host network layer, and this layer is also called as internet layer. ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास 4 layers हैं. So if I'll rename this by using numberings, I can write 1, 2, 3 and 4. These 4 layers do the same work that the 7 layers of OSM model do. However, OSM model में हमने बताया था कि क्या किस लेयर में क्या काम होता है, और यहाँ पे एक्चुअली हम देखेंगे कि कौन जिम्मेदार है उस काम को प्रोसेस करने के लिए, कौन सा प्रोटोकॉल उस चीज के लिए अवेलेबल है हमारे पास. Now in case of layer 1 and 2, as you can see, physical layer and data link layer, these are called as host network layer. In this case, TCP/IP doesn't provide any of protocols. ये वही protocols use करता है, physical layer and data link layer, जो उस network ने use किए होंगे जिसके साथ हमारा कनेक्शन हो रहा है. Say suppose for example, if I have a router, ठीक है, और राउटर में मेरे पास सपोज ये सारे लेयर्स यूज हो रहे हैं, और मेरे पास एक अपना नेटवर्क है, से दैट नेटवर्क मैंने उसका नाम एक्स रखा. तो जो एक्स में प्रोटोकॉल्स यूज होते होंगे फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के लिए, वही मेरे पास राउटर में भी फिजिकल और डेटा लिंक लेयर के लिए यूज होंगे इफ आई हैव टू मेक सम सॉर्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन. सो दैट्स व्हाई नो प्रोटोकॉल्स आर गिवन इन फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर. ठीक है, अब जो रही सेकंड वाली बात, दैट इज network layer. In case of a network layer, it is also called as IP layer, which stands for internetworking protocol. So internetworking protocol जो हमारे पास है, it in turn, ठीक है, no doubt supports internetworking or communication. It takes the support of 4 major protocols, that is ARP, RARP, IGP, IGMP, ICMP. I'll discuss these in a bit. ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास layer 4 है, that is transport layer. Again we have SCTP, which stand for Stream Control Transport Protocol. We have TCP, Transmission Control Protocol. We have UDP, User Datagram Protocol. And similarly, in case of
सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, विच आर कंबाइनली कॉल्ड एज एप्लीकेशन लेयर्स। ठीक है, तो इनको हम खाली एप्लीकेशन लेयर कहते हैं इन तीनों को। तो दिस इज एप्लीकेशन लेयर, दिस इज होस्ट नेटवर्क लेयर एज द नेम इज गिवन ओवर हियर। ठीक है, तो इसको नाम इंटरनेट और नेटवर्किंग लेयर एंड दिस इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन लेयर। Now, in case of application layer, we have protocols such as SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. We have FTP, File Transfer Protocol. We have Domain Name Server. We have HTTP. We may have Simple Network Management Protocol, SNMP, SNMT. ठीक है, Simple Network Management Protocol, SNMP. We may have that also over here, or further we may have many. That's why we have given dots over here. ठीक है. Now coming back to our main focus, that is layer 2 of TCP/IP मॉडल, जिसमें हमारे पास 4 प्रोटोकॉल्स हैं जो हेल्प करते हैं असल में आईपी को अचीव करने में। दैट मींस इंटरनेट नेटवर्किंग को अचीव करने में, इंटरनेट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल उसको अचीव करने में हमारे पास 4 प्रोटोकॉल्स हैं। तो विल डिस्कस दीज लेयर्स इन डिटेल। नाउ वी हैव आईपी प्रोटोकॉल and that is supported by first one is ARP. ठीक है, stands for Address Resolution Protocol. Now what this Address Resolution Protocol does, it says that जब भी हमें किसी डेस्टिनेशन को डेटा ट्रांसफर करना होगा, से सपोज फ्रॉम ए आई हैव टू ट्रांसमिट ए डेटा टू ए लोकेशन, से सपोज एक्स विच इज एट सम अदर लोकेशन। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है, फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा इट इज नेसेसरी दैट आई नीड टू हैव लॉजिकल डेटा, लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, एंड आई नीड टू हैव द फिजिकल एड्रेस। नाउ लॉजिकल एड्रेस मींस आईपी एड्रेस, फिजिकल एड्रेस मींस we'll give detail in the addressing. For the time being, it is a machine address or the physical address of the device, which is written on usually on network interface card. तो उस चीज को कम्युनिकेशन के लिए अब 2 चीजें जरूरत है, लेकिन A के पास अपना A has A's IP address and it has its physical address. ठीक, 2 चीजें इसको चाहिए थी, 1 and 2. Similarly, it needs 2 things of this also. That is, इसको जरूरत है हमारे पास x का IP एड्रेस और x का फिजिकल एड्रेस, बट इट ओनली नोज द IP एड्रेस ऑफ x. फॉर दैट केस ये क्या काम करता है, इट सेंड्स ए रिक्वेस्ट. ठीक है, ये कभी कभार ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, कभी कभार इट मे बी वन ऑन वन. ठीक है, यूजुअली in this case it will be a broadcast message. It will send a request message, ARP, address resolution protocol request message, in which it states that I need the physical address of a device जिसका IP एड्रेस मेरे पैकेट में है. दैट मीन्स ये एक पैकेट भेजेगा अपने नेटवर्क में, जिसमें मे बी इंटरमीडिएट यहाँ पे भी कोई और डिवाइस होगा, यहाँ पे कोई और डिवाइस होगा जो उसको फेच करेगा, लेकिन वो क्रॉस चेक करेंगे इसके आईपी एड्रेस को. कौन सा आईपी एड्रेस, जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज ओवर हियर. तो ये सारे इसको चेक करेंगे, ये देखेगा कि भाई जो इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस है ये मेरा नहीं है, तो मेरे लिए ये पैकेट नहीं है. सिमिलरली ये भी चेक करेगा एंड अल्टीमेटली एक्स विल सी कि नहीं इसमें मेरा एड्रेस है, तो इट इज आस्किंग फॉर माय फिजिकल एड्रेस. तो ये यहाँ से वापस भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ एन, इसने रिक्वेस्ट भेजा था तो ये किस में भेजेगा, इन द फॉर्म ऑफ रिप्लाई भेजेगा. और रिप्लाई में क्या है, यहाँ से भेजेगा ये अपना फिजिकल एड्रेस भेजेगा. इन दिस वे ए विल हैव नाउ टू टाइप्स ऑफ एड्रेसेस, इट्स ओन आईपी एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस, एंड आईपी एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस ऑफ एक्स, जिसके साथ इसको कम्युनिकेट करना होगा. अब जब जब इसे कम्युनिकेट करना होगा, इसे इस फिजिकल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी. फॉर दैट रीजन ये कुछ देर के लिए इस फिजिकल एड्रेस को अपने कैश मेमोरी में या अपने पास स्टोर रखता है, सो दैट ये बार बार ये एआरपी जो हमारे पास है वो मैसेज ना जाए या वो मैसेज या रिक्वेस्ट मैसेज इसे ट्रांसफर ना करने की जरूरत पड़े, बल्कि ये क्या करे, ये इजीली जो है सीधे डेटा ट्रांसफर करे, बिकॉज इट ऑलरेडी हैज नाउ आईपी एड्रेस इन द फिजिकल एड्रेस. दैट इज द वर्क ऑफ एन ARP. So similarly, sometimes the converse of this might happen. ठीक है, उस टाइम पे हमारे लिए रिवर्स, बाकी सेम है. रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल is that sometimes we may have a situation
वेन हम अब अपने नेटवर्क के साथ या नए किसी नेटवर्क के साथ जुड़ रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे हमें अपना फिजिकल एड्रेस पता है, आईपी एड्रेस हमें पता नहीं है। तो इन दैट केस ये क्या करेगा, ये एक रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल मैसेज भेजेगा। किसको वो भेजेगा? इट मे बी अ लोकल राउटर, इट मे बी अ लोकल सिस्टम विच विल एक्ट एज ए सर्वर, जिसके पास हमारे आईपी एड्रेसेस वगैरह स्टोर होंगे। ठीक है, इन दैट केस ये क्या काम करता है, ये we can say now, अगर इंटरनेट हमारे पास लैब में है, वी हैव 50 सिस्टम्स और हम अपना लैपटॉप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो लैपटॉप जब कनेक्ट हो रहा है उसे अपना फिजिकल एड्रेस तो पता है, बट इट डजंट नो कि मुझे कौन सा आईपी एड्रेस मिलेगा जिसकी हेल्प से मैं बाकी कम्युनिकेशन आगे कर सकता हूँ, एआरपी में एक्सेस कर सकता हूँ या बाकी कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। फॉर दैट रीजन हमारे पास क्या है, हमारे पास सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, लाइक वी मे हैव bootstrap protocol, or we may have another one which is called as DHCP, dynamic host configuration protocol, which is used nowadays। और ये DHCP है जो है ये both static होता है as well as dynamic होता है। ठीक है, तो जो रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है दैट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ bootstrap protocol and DHCP protocol। nowadays more familiar is DHCP, वो ज्यादा यूज होता है। boot प्रोटोकॉल में क्या होता है, यूजुअली हमारे पास सोर्स एड्रेस जो होता है हमारे पास, इसको हमारे पास कोई वी कैन से सर्वर नहीं रहता है, इसको पता ही नहीं होता है कि मेरे पास जो राउटर है उसका एड्रेस भी क्या है। इन दैट केस ना तो इसको अपना आईपी एड्रेस पता है, ना तो इसको सर्वर को जिसको इसको मैसेज भेजनी थी कि भाई मेरा आईपी एड्रेस क्या है, मुझे कोई आईपी एड्रेस बताओ कि जो मुझे एलोकेट हो सकता है। इन दैट केस इसे ये भी नहीं पता होता है कि मुझे किसको मैसेज भेजनी है। इन दैट केस बूटस्ट्रैप जो है वो सोर्स एड्रेस जो है वो ऑल जीरोज रखता है, सोर्स एड्रेस एज ऑल जीरोज, जो भी इसमें बिट्स होंगी वो जीरोज रखता है। और जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस विल बी नाउ, ये एड्रेस किसका होगा, ये हमारे राउटर का होगा या उस पीसी का होगा जो हमारे आईपी एड्रेस को मैनेज करता है, और ये उसका एड्रेस रखता है ऑल वंस इन बूट पी। ठीक है, बट नाउअडेज ये भी ज्यादा यूज नहीं होता है, और जैसे कि मैंने आपको बोला DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल विच इज स्टैटिक, दैट मींस अब हम क्या करते हैं, अपने आप से यहां से ही एक आईपी एड्रेस अपने सिस्टम को देते हैं, पर दैट आईपी एड्रेस शुड बी यूनिक, वो कंफ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए किसी और के साथ। डायनेमिक मींस कि हमने सिस्टम को कनेक्ट किया नेटवर्क के साथ, तो हमारे पास राउटर होगा या जो सिस्टम होगा वो डायनेमिकली देखेगा कि मेरे पास जो पूल है, ठीक है, उसके पास एक टेबल जैसा होगा, और उस टेबल में क्या होगा, उसमें दो लिस्ट बने होंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ अवेलेबल और एलोकेटेड। ठीक है, एलोकेटेड आईपी एड्रेसेस और लिस्ट ऑफ अवेलेबल आईपी एड्रेसेस। तो जो आईपी एड्रेसेस अवेलेबल होंगी वो उनको वो असाइन कर देगा जो जो सिस्टम उसमें ऐड हो रहा है। और वो कैसे असाइन होगा, वो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, बट it is now only term that is used, but this implementation is achieved with the help of DHCP। that means reverse address resolution जो है वो अब डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू हम ऑब्टेन कर पाते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, जो इसमें हमारे पास नंबर 3 था दैट वाज ICMP, which stands for Internet Control Message Protocol। now there are certain things जो हमारे पास इस नेटवर्क लेयर को काम करना होता है, दैट इज इट हैज टू चेक द एरर, एरर रिपोर्टिंग देखनी होती है, या इसको कुछ मैनेजमेंट क्वेरीज करने होते हैं। ठीक है, तो वो किसका काम रहता है, वो हमारा काम रहता है ICMP का। तो वी कैन से एरर रिपोर्टिंग, एरर रिपोर्ट एज वेल एज क्वेरी, सम मैनेजमेंट क्वेरीज। मैनेजमेंट मींस रिगार्डिंग और जो है हमारे पास नेटवर्क, उसमें कुछ जो सिस्टम के बीच में कुछ कम्युनिकेशन करनी है आपस में, या देखना है कि हमारा कनेक्शन है भी या नहीं है, या कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं। इन दैट केस दोज आर कॉल्ड एज मैनेजमेंट क्वेरीज। तो वो सारी किसका काम है, वो ICMP का काम है। एंड फाइनली वी हैव वन मोर दैट इज IGMP, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें भी थोड़े बहुत हमारे पास सब लेवल्स होते हैं कि मैसेजेस, कुछ टाइप्स की मैसेज होती है। यूजुअली वी हैव क्वेरी मैसेज विच अगेन, ठीक है, तो वी कैन से जो IGMP है इसमें हमारे पास कुछ क्वेरी मैसेज होती है। दोज क्वेरी मैसेज में फर्दर बी क्लासिफाइड एज जर्नल क्वेरी मैसेज और स्पेसिफिक क्वेरी मैसेजेस। एंड सिमिलरली वी मे हैव certain leave reports
ठीक है, और वी मे हैव मेंबरशिप नो message. Membership message means whenever someone gets added to our and similarly we have leave report. In this case ये जो ICMP है it is usually unicast, that means it is one to one. एक सिस्टम यहाँ से एक सिस्टम वहां से हम आपस में कम्युनिकेट करें. In that case we'll see what are the various error reports that may be there and what are the various query or management queries that ICMP looks after. ठीक है, but in case of IGMP, since it is internet group management protocol, so there we have a group of receivers, or we can say whenever we have multicast or broadcasting messages that ought to be controlled or that ought to be monitored with the help of IGMP. और उस IGMP में हमारे पास कुछ queries होती है. as we had in ICMP we had membership means जब भी कोई नया सिस्टम आता है, नया डिवाइस आता है और वो उस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है, लाइक एज दैट ऑफ वी हैव सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक व्हाट्सएप और अदर्स. जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो जब भी कोई ग्रुप में एंटर होता है तो सबको इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि भाई ये फलानी नंबर जो है ये ऐड हुआ है इस ग्रुप के साथ. अगर कोई लीव करता है तो दैट is also displayed on the group. So similarly there are certain messages that need to be circulated throughout the group so that हर एक ग्रुप मेंबर होगा वो अपने डेटा को अपडेट करता रहे कि कौन भी मेंबर है और कौन नहीं है. दैट इज फॉर IGMP. Now coming back to our ICMP जो हमारा, जिसमें हम थोड़ा देखेंगे कि एरर रिपोर्ट और क्वेरी मैसेजेस जो हमारे पास है ये कौन सी होती है. So here you can see कि भाई in case of ICMP, let me write over here that this is ICMP. ICMP के बारे में first one is error reporting. Now error reporting can be destination unreached, source quench, time exceed, parameter and redirection. Now what is destination unreachable? Destination unreachable means जब भी मैं किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं तो या तो मेरा राउटर के साथ कनेक्शन नहीं हो रहा है या जिसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूं या करने की कोशिश कर रहा हूं उसके साथ किसी न किसी वजह से मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है. एट दैट टाइम द मैसेज दैट विल बी फ्रॉम द अदर साइड, ठीक है, वहां से जो रिप्लाई आएगा दैट विल बी दैट डेस्टिनेशन अनरीचेबल, दैट आई एम नॉट एबल टू फाइंड द IP एड्रेस जो आपने मेंशन किया हुआ है वो कहीं पर भी हमारे पास नेटवर्क में नहीं जुड़ा है. तो उस टाइम पे हमारे पास जो मैसेज आएगी दैट विल बी डेस्टिनेशन अनरीचेबल. ठीक है. Now number second is source quench. Now source quench says that it is used in case of flow control mechanism usually, कि कभी कभार फ्लो कंट्रोल के लिए काम आता है. कभी कभार हमारे पास जो A होगा, ठीक है, वो मे बी हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर रहा है टुवर्ड्स B, और जिस स्पीड से A ट्रांसफर कर रहा है उस स्पीड से B प्रोसेस नहीं कर रहा है. इसका काम है ट्रांसफर करना और इसका काम क्या है, उसे प्रोसेस करके वापस देखना कि डेटा क्या था हमारे पास एक्चुअली में. तो जिस रेट से ट्रांसफर हो रहा है रेट इज मोर एंड द प्रोसेसिंग स्पीड इज लेस. तो उस टाइम क्या हो सकता है, जो B का बफर होगा हमारे पास, इसमें बफर होगा ओवरफ्लो. बफर में क्या रखते हैं हम, उतनी देर में वो मैसेजेस जो हमने अभी प्रोसेस नहीं की है, एनक्रिप्ट नहीं की है, तो वो हमने बफर में रखा. तो ड्यू टू वी कैन से फास्ट ट्रांसफर रेट, ठीक है, तो फास्ट ट्रांसफर रेट की वजह से हमारा बफर ओवरफ्लो हो जाता है. और अगर बफर ओवरफ्लो हो जाता है तो उस वजह से हमारा कुछ ना कुछ डेटा लॉस हो जाता है. तो वी कैन से जो सोर्स क्वेंच है, ये वाली मैसेज जो आएगी हमारे पास, देयर विल बी टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट. नंबर वन कॉन्सिक्वेंस विल बी कि भाई हमारे पास ये पता चल जाएगा कि जो मैसेज थी हमारे पास वो मैसेज जो है सम डेटा माइट बी लॉस्ट, some data is lost or we can say discarded also. Discarded by whom? Discarded by B, क्योंकि B के पास अब जगह ही नहीं थी जिसमें वो एक्स्ट्रा डेटा रखता है जिसे अभी उसे प्रोसेस करना था. सेकंड थिंग इज इट इन्फॉर्म्स द सेंडर. जब ये सोर्स क्वेंच मैसेज किसको आएगी, A को, ये मैसेज सारी किसको आएगी, A को, जो कि सोर्स का काम कर रहा है, न कि एज अ डेस्टिनेशन. तो सोर्स को क्या बताया गया दूसरी इंफॉर्मेशन, दैट ये जो आपको स्पीड है यू हैव टू स्लो डाउन. दो चीजें ये बताता है सोर्स क्वेंच मैसेज. वन इज इट इन्फॉर्म्स द सोर्स और इट इन्फॉर्म्स A कि भाई आपने जो डेटा ट्रांसफर किया है उसमें कुछ डेटा डिस्कार्ड हुआ है,
क्यों डिस्कार्ड हुआ? क्योंकि आपकी ट्रांसफर जो रेट थी वो ज्यादा थी, इसलिए बराए करम जो है आपकी स्पीड जो है, जो डेटा रेट है उसको स्लो डाउन कीजिए। नंबर थर्ड वन इज टाइम एक्सीड। नाउ टाइम एक्सीड यूजुअली जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए पैकेट, लेट इट बी इट इज एन IPv वर्जन 4 पैकेट, IPv वर्जन 4 में यूज कर रहा हूं, इन दैट केस वहां पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है विच इज कॉल्ड एज टाइम टू लिव। ठीक है, तो टाइम टू लिव दिस टाइम टू लिव इज यूजुअली नंबर ऑफ हॉप्स और नंबर ऑफ राउटर्स जहां तक मेरा डेटा जा सकता है, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा नेटवर्क में, सो दैट हमारे पास नेटवर्क में कंजेशन ना हो जाए। उस चीज के लिए हमारे पास क्या होता है, हमने इसका वैल्यू कुछ रखा होता है, और जब भी नेक्स्ट राउटर को, से सपोज इनिशियली जब मैं यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ, मैंने टाइम टू लिव रखा 15, जब फर्स्ट राउटर को वो मिला तो दिस विल एक्ट एज ए फर्स्ट हॉप, तो वो उसे डिक्रीमेंट करके 14 रखेगा। जब वो नेक्स्ट राउटर को भेजेगा वो 14 को 13 करेगा। अल्टीमेटली विद इन द 15 हॉप्स इट शुड रीच द डेस्टिनेशन। अगर ये डेस्टिनेशन पे पहुंचा वेल एंड गुड, अगर नहीं पहुंचा, जिस भी राउटर के पास पहुंच के इसका टाइम टू लिव 0 हो जाएगा, वो इसको डिस्ट्रॉय करेगा, डिलीट करेगा। ठीक है, इसमें नेटवर्क में नहीं रखेगा। तो फर्स्ट थिंग इज दैट, तो टाइम एक्सीड तब हमारे पास आ जाता है। और वी मे हैव समटाइम्स अ सिचुएशन जब हमने डिसाइड किया होता है कि ये पैकेट से सपोज 5 मिलीसेकंड में डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, बट टाइम टू लिव है अभी उसके पास। ठीक है, वो टाइम टू लिव 0 नहीं है, बट वी मे एक्सपेक्ट ड्यू टू आवर इंटरनेट स्पीड या ड्यू टू आवर ट्रांसमिशन स्पीड, हमें ये पता था कि ये 5 मिलीसेकंड में डेस्टिनेशन में पहुंचेगा, लेकिन वो 5 मिलीसेकंड नहीं पहुंचा, इट टुक 10 मिलीसेकंड। देन इन दैट केस आल्सो वी मे हैव टाइम एक्सीड मैसेज। तो रिसीवर को उस टाइम, तो दोनों सूरतों में, एक जब टाइम टू लिव बिकम 0, ठीक है, जब इसका वैल्यू कितना बना, जब इसका वैल्यू बना 0, और वी मे हैव टाइम एक्सीड जब हमारा टाइम ज्यादा हुआ, एक्स्ट्रा टाइम, टुक एक्स्ट्रा टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। उन दोनों सूरतों में हमारे पास क्या आ सकता है, टाइम एक्सीड। सिमिलरली वी हैव पैरामीटर प्रॉब्लम। पैरामीटर प्रॉब्लम से इज दैट हमारे पास बहुत सारे हेडर होते हैं, जो हेडर में होती है ना हमारे पास इंफॉर्मेशन, हेडर इंफॉर्मेशन, some extra information apart from data, and we have source address and destination address. Apart from that we have many other information जो मैंने आपको बोला पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जो हमारा होगा पैकेट फॉर्मेट ऑफ IPv4 एंड IPv6, वहां हम देखेंगे कि हेडर में कौन सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जाती है। कह रहा है अगर उस इंफॉर्मेशन में कुछ मिसप्लेसमेंट है, ठीक है, या रिसीवर उसे सही से वी कैन से, या इंटरमीडिएट राउटर उसे सही से मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ रहा है कि इस वाले पार्ट का क्या मतलब है। क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि उसमें कोई ना कोई जो मिसिंग है सम डेटा, उस वजह से क्या होगा, सेंडर को वापस मैसेज आएगी, ए को वापस मैसेज आएगी कि भाई हम जो आपके पास जो फ्रेम था उसमें कोई ना कोई पैरामीटर जो था वो क्या था, वो मिसिंग था। ठीक है, तो दिस इज अवर सेंडर एंड दिस इज अवर डेस्टिनेशन और रिसीवर। सिमिलरली जो लास्ट वाला है दैट इज रिडायरेक्शन। रिडायरेक्शन सेज sometimes we may have a situation that in case अगर A हमारा सोर्स है और B हमारा डेस्टिनेशन है, और A को B तक पहुंचने के लिए, और या A की मैसेज को B तक पहुंचने के लिए हमारे पास बीच में एक इंटरमीडिएट डिवाइस था विच इज से सपोज X, और उसके बाद एक और इंटरमीडिएट डिवाइस था Y, और अल्टीमेटली ये किसके पास पहुंचता, B। लेकिन A के साथ एक और डिवाइस कनेक्टेड है विच इज से सपोज M, which is connected to some other device and which is connected to some other device and so on। लेकिन वो B के पास नहीं जा रहा है, but there might be a connection, ठीक है, say suppose M के through which is M between M and N, and the best route जो इसमें है A से लेके B तक जाने के लिए, say suppose that was this one, best route की बात मैं कर रहा हूं, और हमने गलती से मैसेज जो ए ने है, वो ए ने मैसेज भेजी किसको, एम को, ए ने रॉन्गली भेज दी मैसेज, से सपोज ए को ए भेजना था और उसने वो ए एक्स को नहीं भेजा, उसने भेजा किसको, एम को, और एम ने क्रॉस चेक किया कि भाई मैं तो भाई सही बंदा नहीं हूं किस चीज के लिए कि मैं इस मैसेज को पहुंचाऊं बी के पास। देयर इज अनदर राउटर इन माय विसिनिटी दैट इज एक्स विच इज बेस्ट सूटेड फॉर ट्रांसफर ऑफ दिस A टू द B। तो ये M क्या करेगा, ये M भेजेगा किसको डेटा, ये A भेजेगा ये X को, एंड साथ साथ में इन टर्न इट विल सेंड ए मैसेज, किसको मैसेज भेजेगा, A को, दैट इज कॉल्ड एज रिडायरेक्शन मैसेज।
रिडायरेक्शन मैसेज क्या कहेगा इसको, ये कहेगा इसको, डोंट सेंड in future, don't send the data which is to be forwarded to B to me. That means M बोल रहा है A को, अगर नेक्स्ट फ्यूचर में आपको कभी भी B को डेटा भेजना होगा तो आप वो मुझे ना भेज के बल्कि किसको भेजो, X को भेजा करो। तो दैट इज कॉल्ड एज रिडायरेक्शन मैसेज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, कुछ एरर रिपोर्टिंग मैसेज थी विच इज इन ICMP एंड बट ICMP ऑल्सो सपोर्ट्स क्या हमारे पास दूसरी, दैट इज क्वेरी मैसेज। Again, it is ICMP. Now, query message says, the first one is, we have 4 types. One is echo, second is timestamp, third is address mask, and number 4th is router solicitation and advertise. The first thing is echo. कह रहे जब भी हमें कभी कभार कम्युनिकेट करना होगा बिटवीन टू डिवाइसेस, वी माइट फर्स्ट वांट टू क्रॉस चेक कि हमारे पास जो क्या कहते हैं इसको, कम्युनिकेशन बिटवीन द टू डिवाइसेस है भी या नहीं है। फॉर दैट केस मैं पहले चेक कर रहा हूं कि मेरा ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, तो मेरा ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं। एंड से सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। इफ इनिशियली आई माइट यूज सम कमांड्स टू क्रॉस चेक, जैसे पिंग वगैरह हम करते हैं, दूसरे कुछ कमांड्स होती है नेटवर्किंग में, तो कमांड्स में अभी मैं नहीं जाऊंगा, आई जस्ट टेल यू कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज क्वेरी मैसेज। ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन देखना है कि हो पाएगा या नहीं, या आपस में जुड़े हैं कि नहीं है, उस चीज के लिए एक मैसेज आती है, दैट इज कॉल्ड एज इको। ठीक है, इको वी कैन अचीव विद डिफरेंट कमांड्स। ना इको मैसेज, इको रिक्वेस्ट भेजेगा ए किसको, बी को। अगर बी कम्युनिकेट या बी का कनेक्शन है ए के साथ, तो बी विल इन रेस्पॉन्स सेंड ए मैसेज विच विल बी कॉल्ड एज इको रिप्लाई। So that's why we can say this is these are all pair of message. क्वेरी मैसेज पेयर ऑफ मैसेज है, यहां से रिक्वेस्ट जाएगा, वहां से रिस्पॉन्स आएगा या रिप्लाई आएगा वहां से। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज इको। तो यहां से रिक्वेस्ट जाएगा, वहां से रिप्लाई आएगा, यहां से रिप्लाई आएगा। दैट इज फॉर टू सी कि आपस में कम्युनिकेशन हो सकता है या नहीं, या ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं कि नहीं। दैट फॉर दैट वी यूज इको। Number second is timestamp. Now between A and B, what is the maximum time that a packet will take from A to B and an acknowledgement will take from B to A? Say suppose again, अगर हमारे पास A है, अब A से मुझे कुछ डेटा भेजना है किसको, B को, और B से वापस क्या भेजना है, उस चीज का acknowledgement. Say suppose this is some sort of data and this is the acknowledgement for the data. अब ये देखना कि A से B तक कितना टाइम लगा और B से A तक कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एज राउंड टाइम। उस चीज के लिए हमारे पास जो कमांड होती है, दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टाइम स्टैम्प, तो वो टाइम स्टैम्प की कैटेगरी में आ जाती है हमारे पास। ठीक है, नंबर थर्ड इज एड्रेस मास्क। कह रहे कभी कभार हमारे पास एड्रेस होता है एंड वी डोंट नो द मास्क। ठीक है, ये मास्क होता क्या है, अगेन आई डिस्कस दैट इन डिटेल इन IP एड्रेसिंग या एड्रेसिंग। ठीक है, तो असल में वी कैन से दिस इज अ पार्ट ऑफ एन एड्रेस जो मिसिंग रहता है कभी कभार, जो हमें पता नहीं रहता है, या ये जो मास्क होता है वी कैन से इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लैश नोटेशन। ये लास्ट में IP एड्रेस के लास्ट में ऐसे दिया होता है। से सपोज आई हैव सम IP एड्रेस 192.168.19.12, then we may have /28, say suppose for example, then this /28 this is called as, or this is called as mask. Now what is the purpose of this mask? ठीक है, what are the various advantages, we'll see later on in part 2 जब हम सबनेटिंग वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग अगर हमें ये /28 नहीं पता है तो हमें पता करवाना है, ठीक है, किसी राउटर से या हमारे पास जो सर्वर होगा who is taking care of our IP addresses, तो ये जो है मैं उसके पास क्या मैसेज भेजूंगा, आई विल ट्रांसफर ए मैसेज फॉर एड्रेस मास्क, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा और वहां से उसके लिए क्या आएगा, रिप्लाई आएगा। सिमिलरली द फोर्थ वन इज राउटर सॉलिसिटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। यू नो राउटर्स के पास हमारे पास राउटिंग टेबल होता है। ठीक है, और राउटिंग टेबल मींस अगर हमारे पास से सपोज मैं एक छोटा सा नेटवर्क बना देता हूं, जैसे ए है हमारे पास एक डिवाइस, वी हैव बी,
we have C. In between, I'll write router 1, I may have router 2, which is connected to this. I may have router R3, which is connected to R1, and I may have router R4, which is ultimately connected to C. And there might be some other networks which are connected, or sometimes there are certain more routers that get connected to our network. कह रहे हैं अब राउटर R1 के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि मेरे साथ इमीडिएटली कौन जुड़ा हुआ है, R2 और R3, लेकिन R1 को ये नहीं पता है ना कि कहीं पे R4 भी है. टू गेट द नॉलेज ऑफ कि हमारे पास R4 भी है, ये R2 क्या करेगा, R2 अपना जो टेबल है वो किसके साथ शेयर करता है, R1 के साथ, और उसको ये इंफॉर्मेशन देता है कि R2 के साथ कौन जुड़ा है इन टर्न B, बिकॉज B ये जो है R2 विल हैव इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली B, एंड R1 के पास किसकी इंफॉर्मेशन होगी, A. अब अगर A और B के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो R1 को पता ही नहीं है ना कि मैं कैसे ट्रांसफर करूं मैसेज, बट इन टर्न ये आपस में क्या है, ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, R1 एंड R2. तो R1 ने इसको A की इंफॉर्मेशन दी एंड R2 ने R1 को B की इंफॉर्मेशन दे दी इंटरन. ठीक है. सिमिलरली यहां से R4 किसको ट्रांसफर करेगा डेटा अपना, R3 को, एंड R3 विल ट्रांसफर टू R4 एंड R4 विल ट्रांसफर टू दिस एंड दिस. तो सिमिलरली अब R1 के पास क्या क्या मैसेजेस है, नाउ R1 हैज इंफॉर्मेशन, इनिशियली R1 हैज इंफॉर्मेशन अबाउट R1, R2 एंड R2 और B के बारे में भी इसको इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन इसने किसके साथ शेयर की, R3 के साथ. तो R3 के पास अब हुआ R1, देन R2, देन B की इंफॉर्मेशन, देन अगर 4 ने भी इसके साथ इसका शेयर किया है तो R3 विल हैव R4 एंड R3 विल हैव C आल्सो. दैट मींस इसके पास इतना बड़ा टेबल होगा. तो ये जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है दैट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ राउटर सॉलिसिटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट. कभी कभार ये स्टैटिक होता है या टाइम बेस्ड होता है. टाइम बेस्ड मींस A या राउटर R1 आफ्टर सम टाइम वो मैसेज सॉलिसिट करेगा या सबसे पूछेगा, सारे राउटर से, भाई अपना टेबल जो है वो मुझे दे दो और देखो कि आपके साथ कोई नया ऐड तो नहीं हुआ है. से सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ R2 के साथ ऐड हुआ एक और विच इज कॉल्ड एज X. इससे पहले इसके पास R1 के पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, R1, R2 एंड B. X की इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है ना. टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ X ईदर R2 विल ट्रांसफर द डेटा, बट इन केस ऑफ राउटर सॉलिसिटेशन वी से दैट हम ही पूछ रहे हैं, R1 ही थोड़ी देर के बाद R2 से पूछेगा क्या कुछ अपडेशन है, अगर अपडेशन है तो मेरे साथ शेयर करो. जब उसने अपने साथ शेयर की तो ये R1 किसको देगा, R3 को. दैट मींस वो एडवर्टाइज कर रहा है, वो सबको बता रहा है कि भाई X भी आया है. मे बी समटाइम्स कोई डिवाइस होता है जो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसको हम हटा देते हैं नेटवर्क से सपोज C हमने हटा दिया, तो C की इंफॉर्मेशन जिस राउटर के पास थी तो उसे वहां से हटाना है ना, क्यों खामखा में हम इंफॉर्मेशन रखिए जबकि हमारे पास वो डिवाइस ही नहीं है. तो उस टाइम पे भी हम राउटर सॉलिसिटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास किसके रिगार्डिंग था, रिगार्डिंग द नेटवर्क लेयर और द इंटरनेट लेयर. तो उसके पास जो हमारे पास प्रोटोकॉल थे, 4 प्रोटोकॉल्स, वो हमने डिस्कस किए. अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है नाउ इट टेक्स इट सिमिलर समवट टू दैट ऑफ आवर OSI मॉडल. सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग या प्रोसेस एड्रेसिंग के लिए इसमें इसके रेस्पॉन्सिबल रहता है. और जो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास प्रोटोकॉल यूज होते हैं दैट इज UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, we have TCP, transmission control protocol, and we have SCTP, stream control transfer protocol है. तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूजुअली जो हमारे पास, जैसे हमारे पास वी हैव पैकेट स्विचिंग. ठीक है. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल दैट यूजेस यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. और ये हमारे पास यूजुअली होता है कनेक्शन लेस. कनेक्शन लेस होता है. TCP however, transmission control protocol, it is connection oriented. Connection oriented means first connection will be established, then only the data will be transferred. और connection less means कोई connection नहीं होगा, ये next node को data transfer करता जाएगा. ये जो basically हमारे पास UDP एक था और जो हमारे पास TCP था, यही ज्यादा हम यूज करते थे. नो डाउट अब इसमें एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म, फ्लो मैकेनिज्म जो हमारे पास OSI मॉडल में होता था, वो सारी चीजें इसमें होती है, वेदर वी यूज UDP और वी यूज TCP. ठीक है. इसके बगैर जो हमारे पास एक एडिशनल प्रोटोकॉल आया था दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, STP. दिस इज यूजुअली यूज्ड फॉर दोज न्यू एप्लीकेशंस. ठीक है. न्यू एप्लीकेशंस which are not usually
कंपेटेबल विद यूडीपी एंड टीसीपी। ठीक है, न्यू एप्लीकेशंस, तो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी है हमारे पास, कुछ मेलिंग एप्लीकेशंस भी है हमारे पास, ठीक है, जो कि कंपेटेबल नहीं है हमारे लिए इसके साथ, यूडीपी और टीसीपी के लिए। तो उन चीजों के लिए हमारे पास क्या था, वी हैड एचटीटीपी, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नाउ गोइंग ऑन, ये तो कुछ प्रोटोकॉल थे एंड अल्टीमेटली वी हैड एप्लीकेशन लेयर, जिसमें कि कुछ हमारे पास प्रोटोकॉल्स वगैरह यूज होते हैं। ठीक है, वी मे हैव इन केस ऑफ एप्लीकेशन लेयर विच इज लेयर फोर्थ, जो एप्लीकेशन लेयर थी हमारे पास, वी मे हैव इन दैट एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, वी मे हैव सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वी मे हैव एचटीटीपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, वी मे हैव सम अदर्स, वी मे हैव, जैसे मैंने आपको बोला था, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, वी मे हैव सम अदर्स आल्सो। ठीक है, तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं जो हम यूज करते हैं कहाँ पे, इन केस ऑफ एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक, तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग हमारे पास ये जो टीसीपी आईपी मॉडल के कुछ प्रोटोकॉल्स थे। तो बेसिक डेफिनेशन, तो इसमें हमारे पास जो बेसिक टॉपिक ऑफ कंसर्न है इन केस ऑफ टीसीपी आईपी, दैट इज एड्रेसिंग। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ एड्रेसिंग वी मे हैव टू टाइप्स ऑफ एड्रेस ब्रॉडली जो हम यूज करते हैं in case of our networks, that is called as IPv4 version 4, ठीक है, and IPv version 6. IP stands for Internet Protocol version, so we may have IPv version 4 and we may have IPv version 6. तो मैं थोड़ी बहुत इसमें आपस में कंपैरिजन दूंगा, उसके बाद हम एक्चुअली में हमें डिटेल में पढ़ना है, दैट इज अवर IPv version 4। क्या ये जो IPv version 4 होता है is of 32 bits and ये जो हमारे पास IPv version 6 होता है it is of 128 bits। ठीक, नंबर सेकेंड इज कि हमारे पास ये जो 32 बिट्स होते हैं ये डिवाइड किए होते हैं 4 पोर्शंस में। ठीक है, तो वी कैन से 4 पार्ट्स, और 4 पार्ट्स में क्या होता है, ठीक है, 4 ऑक्टेट्स होते हैं हमारे पास। 4 ऑक्टेट्स मींस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, देन गैप 1 2 3 4 5 6 7 8, then dot 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 and dot, that means 8 and 8 are 16, 8 plus 8 24 plus 8 32। तो ये हमारे पास कितनी बिट्स बनती है, 32 बिट्स। तो इनको डिवाइड किया होता है हमने 4 पोर्शंस में। ठीक है, उन पे हम अभी बात करेंगे कि वो 4 पोर्शंस कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये 4 पोर्शंस होते हैं हमारे पास इन केस ऑफ IPv4, but in case of IPv6 we may have 8 portions। ठीक है, 8 parts, we have 8 parts, but ये जो each part होता है ना, 1 part is equivalent to 16 decimal places। ठीक है, तो we have hexadecimal। hexadecimal notations होती है इसमें, और each part contains 16 bits। तो 16 and it is in hexadecimal। ठीक है, now moving on, हमारे पास नोटेशन जो होती है वो रिप्रेजेंट करने के लिए इन केस ऑफ IPv4 we have 2 notations, one is called as binary notation which is ये जो मैंने यहां दिखाई, and another one is called as dotted decimal notation। dotted decimal notation, dotted decimal notation। वो dotted decimal notation कौन सी होती है, I will show you। dotted decimal notation means like 192.168.15.3 जो भी बनते हैं। बाइनरी नोटेशन मींस दिस वन अपन वंस एंड जीरोस की फॉर्म में। ठीक है, सिमिलरली जब हमें IPv वर्जन 6 की नोटेशन दिखानी है, दैट इज कॉल्ड एज हेक्साडेसिमल
कोलन नोटेशन। notation and usually hexadecimal, as if it will be like this ASC0 then separated by colons। यहाँ separated by dot होता है, that's why dotted decimal notation। यहाँ separated by colon होता है और hexadecimal use होता है, that's why hexadecimal colon notation। say suppose 0000 then 4 9 B C then so on and similarly ये कितने ग्रुप्स होंगे हमारे पास 1 2 3, ये बना 1, ये बना 2, ये बना 3 एंड अल्टीमेटली डॉटेड 8 3 1 4। दिस इज लास्ट वन, दिस इज दी 8th ग्रुप, क्योंकि 8 पोर्शन पार्ट्स होते हैं ना इसमें, तो हर एक का कितना होगा टोटल, वो 16 बिट्स का होता है हर एक इसमें, ठीक है। तो 16 का मतलब अगर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं तो ये दिस F, दिस A विल बी रिप्रेजेंटेड इन 4 बिट्स, ठीक है। दैट मींस say suppose for example if this is then this is for A then for F, ठीक है। यूजुअली ये जो ये F के लिए है, ठीक है। तो लेट इट बी, अगर हम एग्जैक्ट कर बना रहे हैं तो 8 9 and 10, so this will be like this 1 1 1 and 1। similarly B C is I think 12 I think, so this will be something like this। then if it is 0 then it will be all zeros। so if we will count these all it should come out to be 16। तो यहाँ से यहाँ तक लेके हमारे पास कितनी आ रही है, 16 बिट्स आ रही है ना। तो सिमिलरली हर एक में 16 बिट्स होंगे। तो दिस इज फॉर IPv वर्जन 6, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी या कुछ कंपैरिजन थे जो हमने बताए किसके दरमियान, हमारे पास IPv4 और IPv6 के दरमियान, जो एड्रेसिंग की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। नो डाउट मैं यहाँ एड्रेसिंग की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट IP एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। बाकी रेस्ट जो IP एड्रेसेस होती हैं वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर में बताए हैं, विच वाज रिलेटेड टू OSI मॉडल। वहां पे मैंने एड्रेसिंग के बारे में बाकी सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ हम जो है उन एड्रेसेस की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम IP एड्रेस की बात करेंगे। तो दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन IPv वर्जन 4 एंड IPv वर्जन 6, लिटिल बिट कंपैरिजन। नाउ इन डिटेल विल डिस्कस, क्या हमें डिस्कस करना है डिटेल में, आई डिस्कस इन डिटेल IPv वर्जन 4। IPv वर्जन 4 जो है बेसिकली जो पहले इसकी क्लासिफिकेशन आती थी दैट वाज कॉल्ड एज क्लासलेस, सॉरी क्लासफुल एड्रेसिंग, ठीक है। क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या होता था हमारे पास कि हमने जितने भी हमारे पास IP एड्रेसेस होते थे ना, सिंस वी हैव 32 बिट्स इन इट, तो 2 पावर 32 जितना भी हम करेंगे उतनी हमारे पास IP एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं। लेकिन फिर हमने ग्रुप्स किए इनको, ठीक है। किस चीज के लिए ग्रुप्स किए हैं, टू मैनेज कि भाई मुझे किसको कितना देना है, कौन सा IP कहाँ पे देना है। तो मैनेजिंग पर्पज के लिए हमने इनिशियली क्लासफुल एड्रेसिंग की थी। लेटर ऑन वी विल सी कि हमारे पास उसमें भी इश्यूज आ गए थे, तो फिर हमने क्लासलेस एड्रेसिंग ही यूज की विद सम रूल्स, अंडर सर्टेन रूल्स। तो ये जो क्लासफुल एड्रेसिंग थी इस पे हमने क्या किया, जो हमारे पास अवेलेबल IP एड्रेसेस थे, वी डिवाइडेड दोज IP एड्रेसेस इनटू नंबर ऑफ वेरियस एड्रेसिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 32 बिट्स थे ना, तो IPv4 की बात कर रहा हूँ। तो दिस इज 1 8 बिट्स 8 बिट 8 बिट 8 बिट विच इज रिप्रेजेंट बाय बाइट, 8 बिट्स मींस दी बाइट, ठीक है। तो हमारे पास अब जो भी एड्रेसेस थे विच एक्चुअली केम विद द हेल्प ऑफ 2^32, क्योंकि 32 बिट्स थे तो उतनी सारी कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाती कि टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस दुनिया में कितने होते हैं IP एड्रेसेस इफ वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो 32 whatever will be the result, that is the number of addresses। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमने A B C D और E क्लासिफिकेशन की 5 टाइप की क्लासेस में, उसमें भी जो लास्ट वाले 2 थे D and E, those were reserved, ठीक है। E was reserved, D was used for some special category, मल्टीकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के लिए, तो लोकल या नॉर्मल के लिए, नॉर्मल यूजेज के लिए अवेलेबल नहीं था। तो नॉर्मल यूजेज के लिए अवेलेबल हमारे पास कितने थे, वो हैड ओनली 3। तो दोनों नोटेशन दिए हैं, दिस इज बाइनरी नोटेशन एंड दिस इज डॉटेड डेसिमल नोटेशन। इन दिस केस अब हमने क्लासिफाई कैसे किया था, वैसे कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेसेस कैसे की थी। हमने कहा था फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट 8 बिट्स जो होंगे इन केस ऑफ क्लास A, उनमें से पहला होगा 0, बाकी 7 व्हाटएवर दे वांट टू बी दे कैन बी, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास वी कैन से इन फर्स्ट केस फर्स्ट वन इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो सेकंड वन जो है हमारे पास बाकी बची कितने, 6 बची,
ये एक हो गई, सॉरी बाकी कितनी बची, 7 बिट्स हमें हमारे पास बची। तो उन 7 बिट्स का वैल्यू सबसे मिनिमम अगर होगा वो सारे जीरोस होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मिनिमम, वो तो सारे जीरोस होंगे। तो इन दैट केस ये जो सारा एड्रेस होगा, अगर इसकी मैं क्या दूंगा डॉटेड डेसिमल नोटेशन, तो सारा बनेगा इक्वल टू 0। और इन द सेकंड केस इफ ऑल आर वंस, 7 1 है ना, 2 रेज पावर 7 इज, तो आप काउंट करोगे, ठीक है, तो विच विल कम आउट बी, बिकॉज 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो 127 की रेंज बन जाती है हमारे पास। ठीक है, कि अगर पहला बिट तो 0 रखना ही रखना है फॉर क्लास ए, तो दोनों के लिए, क्लास ए के लिए ये तो 0 रहेगा ही रहेगा, बिकॉज इट इज मैंडेटरी, इट एक्चुअली आइडेंटिफाइज कि ये क्लास ए का एड्रेस है। ठीक है, बाकी या तो जीरोस होंगे या तो वंस होंगे। अब इंटरमीडिएट भी हो सकती है, से सपोज कभी कभार ऐसा होगा बीच में ऐसे होगा हमारे पास 0 1 0 1 1 0 एंड 0, देन वी विल कन्वर्ट दिस बाइनरी, और ये तो 0 होगा ही होगा, विल कन्वर्ट दिस बाइनरी इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा हमारे पास आईपी एड्रेस है। पर द रेंज विल बी, जिसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 127 होगा, मिनिमम होगा 0, और उसके बीच में जो भी आईपी एड्रेसेस होंगे तो वो आएंगे हमारे पास क्लास ए। ठीक है, एंड दिस क्लास ए, सिंस दिस फर्स्ट बाइट जो हमारे पास है उसमें वो रेंज दे रहा है हमारे पास। ठीक है, एंड दिस इज गिवन इन ए कलर्ड, ये इसको हम कहते हैं नेटवर्क आईडी। क्या कहते हैं इसको, नेट आईडी भी कहते हैं हम इसको। नेट आईडी, एंड जो व्हाइट कलर से हैं दोज आर यूजुअली कॉल्ड एज होस्ट आईडी, दैट मीनिंग नंबर ऑफ यूजर्स वी कैन है। वो इसके बाद में एक और फिगर दिखाऊंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, तो दिस इज 0 to 127, तो टोटल कितना बना 128। तो कीप इन माइंड कि टोटल हमारे पास कितने हैं इसमें, तो वी हैव 128। सिमिलरली कह रहा है कि नेक्स्ट जो है क्लास बी, उसमें पहला हमेशा होगा 1 और दूसरा होगा 0, दैट मीन्स 2 आर नाउ रिजर्व्ड, दैट मीन्स 1 एंड 0 रिजर्व है, बाकी जो भी सारे हैं उनका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो वो जब हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो विल सी कि पहला 1 है इन दिस केस, इन सेकंड केस फर्स्ट बिट इज 1, सेकंड बिट इज 0, तो बची कितने हमारे पास 6 बिट्स, देन दो 6 बिट्स कैन हैव एनी वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर मैं ये डालूं तो पहला बिट का था ना वैल्यू, तो पहला बिट विल बिकम इक्वल टू 128 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करूं। ठीक है, शॉर्ट में अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपको कैसे करते हैं, तो विल मार्क 1 2 4 8 16 32 64 एंड दिस इज 128। कितना, तो जिसके पास 1 होगा तो वो वैल्यू काउंट होगा, तो 128 बनाइए। सिमिलरली अगेन ये सेम ही रहेगा। नाउ दिस कैन है मैक्सिमम वैल्यू, जब सारे वंस होंगे दैट मीन्स इनको मुझे सबको ऐड करना है, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 128, दैट विल कम आउट टू बी 191। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक आ गई क्लास बी की, तो 128 से लेके 191 तक हमारे पास रेंज आ गई। सिमिलरली क्लास सी के लिए भी हमारे पास पहले 3 रिजर्व है, वो कभी चेंज नहीं होगी, दैट विल ऑलवेज बी 110। बाकी जो हमारे पास 5 है वो चेंज होती रहेंगी। ठीक है, वो या तो 0 0 0 होंगी, अगर वो सारी 0 होंगी देन द सम विल बी 192, अगर वो सारी 1 होंगी तो सम विल बी 223। तो दिस वाज द बेसिक आइडिया कि हमारे पास बाइनरी नोटेशन कैसे होती है, तो सेम कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नोटेशन कैसी होती है इन केस ऑफ IPv वर्जन 4। ठीक है, तो ये IPv4 के लिए है। जो मैं बात कर रहा था आपके साथ कि ब्लॉक साइज वगैरह इन केस ऑफ क्लासलेस एड्रेसिंग, कितने हमारे पास आईपी एड्रेसेस होंगे, ठीक है, क्या इश्यूज आती हैं हमारे पास उनमें। ठीक, तो ये जो हमारे पास है दिस इज फॉर क्लास फुल एड्रेसिंग, दिस इज फॉर क्लास फुल एड्रेसिंग। क्या इश्यूज आए थे, क्यों हमें फिर इसे यूज ना करके क्लासलेस एड्रेसिंग यूज करनी पड़ी। दिस इज फॉर IPv वर्जन 4, IPv फॉर वर्जन 4। हियर यू कैन सी, जैसे कि हमारे पास प्रीवियसली इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास इसमें 0 इज रिजर्व्ड ना, जो नेक्स्ट 7 है वो चेंज हो सकती है ना हमारे पास। तो ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास 2⁴ अगर हम 7 देखेंगे, ठीक है, तो इट विल कम आउट टू बी 256। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं, तो सॉरी 2⁴8, बट 2⁴7 इज 128,
तो जो 7 बिट्स हमारे पास रही थी, जैसे कि हमारे पास इसमें आया था यहाँ पे, ठीक है, when all the bits were 1 1 1 1 and 1, ठीक है, because 0 is reserved, तो हमारे पास कितने आए थे 127। so we can say now in this case that means जो 128 है, 128 नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, we have networks। कितने नेटवर्क्स हैं 128, 1 बिट छोड़ के बाकी सब। तो उन जो हमारे पास बाकी बिट्स बची ना, टोटल कितनी है हमारे पास, तो वी कैन से 2 raised power 7 is 128, 0 is टू आइडेंटिफाई कि कौन सा क्लास है, बाकी कितने बचे हमारे पास 2 raised power we can say 24, that will come out to be 16777,216, that is 1,67,77,216, this much number of users हमारे पास होंगी, which is practically we can say not possible। we are saying कि हमारे पास दुनिया में 128 ऑर्गेनाइजेशन जैसे फॉर द टाइम बीइंग, और उन 128 128 ऑर्गेनाइजेशन में हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो पीसीज हमारे पास हैं दैट इज 1,67,00,000, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, कि हर एक कंपनी के पास 1,67,00,000 है, 1,67,77,000 समथिंग हमारे पास पीसीज हैं। ठीक है, तो कितनी हमारे पास प्रॉब्लम हुई, तो अगर हमारे पास एट मैक्सिमम 30,000 40,000 से सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख भी है 2 लाख भी है बट नॉट 1 करोड़, ठीक है, तो कितने आईपी एड्रेसेस हमें वेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे वेस्टेज हो रही है इन केस ऑफ अगर हम क्लास ए एड्रेसेस यूज कर रहे हैं। अगर हम क्लास बी एड्रेस यूज कर रहे हैं अगेन, अब हम देख सकते हैं कि भाई 2 बिट्स को छोड़ के हमारे पास इसमें यहाँ पे 6 बिट्स बची और इसकी 8, 6 and 8 is 14, तो अगर मैं 2 raised power 14 कर रहा हूं तो दैट विल कम आउट टू बी माई 16384। तो इतने सारे बिट्स हमारे पास हैं, ठीक है, या इतने सारे हमारे पास नेटवर्क्स हैं, तो दिस विल बी नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड दिस विल बी नंबर ऑफ यूजर्स, विच अगेन की यूजर्स बाय एंड लार्ज इतने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां जिनमें इतने एम्प्लॉयज हो सकते हैं 65,000 या मोर देन दैट, बट नॉट कि 16,000 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं या ऐसे नेटवर्क्स हैं जिनमें इतने पीसीज हमारे पास कनेक्टेड हैं। अगेन वी मे हैव 100 200 लेट इट बी 1000 ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास 65,000 के आसपास पीसीज हैं जो कनेक्टेड हैं हमारे पास, जिनके लिए आईपी एड्रेसेस हमने दी है। लेकिन बाकी 15,000 का क्या हुआ, बाकी 15,000 तो कंपनीज में इतनी नहीं है ना, तो लेटर भी हमने उन 15,000 कंपनीज को भी वो नेटवर्क या ब्लॉक्स एड्रेस दे दी, तो उन्होंने यूज किए 500 600 किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अल्टीमेटली 60,000 हमारे पास आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो रहे हैं। इन क्लास सी वी कैन सी नाउ सिंस हमारे पास अब यहाँ पे 3 है जो एड्रेस को नेटवर्क को डिनोट करते हैं, बाकी इसमें बचे 5, देन वी हैव 8, देन वी हैव 8। जब हम इसका टोटल करते हैं, ठीक है, 8 and 8 is 16 देन 21, तो जब हम इनका देख रहे हैं तो मेरे पास जो टोटल बनेगा नंबर ऑफ जो नेटवर्क्स होंगे दैट इज 20,97,152, विच इज कंसिडरेबली वेरी गुड अमाउंट। बट इसमें जो हमारे पास अब इशू आ रहा है, वो इशू क्या आ रहा है, वो इशू आ रहा है कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं इसमें, ठीक है, वो है 256। क्यों 256 ये, क्योंकि यूजर्स के लिए जो हमने एड्रेस रखा था दैट इज फॉर यूजर्स, ये यूजर्स है ना, तो यूजर्स में 8 ही बिट है ना, 1 बिट बाइट है, तो उस चीज के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, वी हैव ओनली 256। बाय एंड लार्ज वेरी गुड फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट फ्यू कंपनीज इन द वर्ल्ड, लेट बी अगेन 1000 जो मैंने इससे पहले लिया था, उसमें इनसे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो अगेन वहां प्रॉब्लम हो रही है कि हम उनको कौन सा नेटवर्क असाइन करें, किस टाइप का क्लास हम एड्रेस असाइन करें। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्लास ए को अगर हमने दिया तो नंबर ऑफ यूजर्स कम होने की वजह से आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो रहे हैं, बी को अगर हमने दिया अगेन नंबर ऑफ यूजर्स कम होने की वजह से आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो रही है, सी अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे तो मैक्सिमम तो सेटिस्फाई होंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होंगी जिनमें 256 से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे, तो उनको एक से ज्यादा आईपी एड्रेसेस हमें प्रोवाइड करनी है, दैट मींस वो एक से ज्यादा नेटवर्क का हिस्सा है, अगेन देयर इज ए प्रॉब्लम। ठीक है, नेटवर्क डी और ई जो है वो क्योंकि वो यूनिकास्ट मल्टीकास्ट के लिए और रिजर्व के लिए था, तो उसमें सारे की सारी आईपी एड्रेसेस जो हमारे पास है, या यहाँ से लीजिए काउंट कीजिए, से सपोज दिस इज 8 and 8 and इसमें कितनी बची 1 2 3 और 4 जो इन सब का सम करके 2 raised power ऑलमोस्ट दैट इज 24 28, तो दैट विल कम आउट टू बी दिस नंबर। तो ये नंबर क्या होगा हमारे पास, ब्रॉडकास्ट, दैट मींस दीज आर द मल्टीकास्ट यूजर्स। जैसे हम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी में ट्यून इन टू रेडियो, तो रेडियो कितने सुन सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सुन सकते हैं, तो वो वैसी वाली मैसेजेस अगर हमें ट्रांसमिट करनी होगी विद हेल्प ऑफ नेटवर्क, तो दोज आर डन विद हेल्प ऑफ
डी, ठीक है। लेकिन इसमें भी अगेन बहुत सारे ज्यादा यूजर्स हैं, ठीक है। यूजर इतने ज्यादा यूजर्स यूजुअली मल्टीकास्ट में होते नहीं है, कभी कभार मे भी हो सकते हैं फॉर इफ द मल्टीकास्ट इज फॉर होल कंट्री, उस टाइम पे आ जाते हैं। एंड रिजर्व वन ये कभी फिर यूज ही नहीं हुए हमने, किए नहीं हमने। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑल कि यहाँ पे कभी कभार हमारे पास नेटवर्क जो है, नेटवर्क जो नंबर ऑफ नेटवर्क है वो कम है, तो नंबर ऑफ यूजर्स ईच नेटवर्क में बहुत ज्यादा है, ठीक है। और कभी कभार हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ नेटवर्क ठीक ठाक है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ यूजर्स बहुत कम है, विच इज इन केस ऑफ दिस सी। तो इस सारी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए वी अल्टीमेटली केम टू द आइडिया दैट वी विल यूज द क्लासलेस एड्रेसिंग। क्लासलेस एड्रेसिंग हमने यूज किया, और क्लासलेस एड्रेसिंग में हमने जोड़े कुछ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज मास्किंग, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर सबनेटिंग वगैरह। एंड वी मे यूज ऑल्सो विच इज कॉल्ड एज सुपरनेटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन वो सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, उस वजह से हमने इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टुडे मैंने डिस्कस किया टीसीपी/आईपी, उसके कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स, ठीक है। एंड अल्टीमेटली आई डिस्कस एड्रेसिंग दैट टू क्लास फुल एड्रेसिंग के बारे में हमने बात की। मैं नेक्स्ट वीडियो जो इसके साथ ही बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा इसके आगे, और विल डिस्कस क्लासलेस एड्रेसिंग, ठीक है। व्हाट वाज द नीड फॉर क्लासलेस एड्रेसिंग, जब हमने देखा कि आईपी एड्रेसेस कभी कभार ज्यादा वेस्ट हो रहे थे, तो कभी कभार कम ही अवेलेबल थे। तो हाउ इज सबनेटिंग अचीव्ड, व्हाट इज अ मास्क, ठीक है, हाउ इज सबनेटिंग अचीव्ड। एंड जो हमारे पास आईपी वर्जन 4 हो या वर्जन 6 हो, उसका जो फ्रेम जाता है, ठीक है, उसका जो फ्रेम जाता है उसका फॉर्मेट क्या होता है हमारे पास, कि डेटा, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, इन सब 3 चीजों के बगैर एक फ्रेम में क्या क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जाती है, सो दैट जो पैकेट है वो अच्छे से या रिसीव हो पाए किसको, डेस्टिनेशन को। तो देयर विल बी ए कम्युनिकेशन फ्रॉम ए टू बी। उस चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास फ्रेम में क्या क्या चीजें जाती है, दैट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, और आपको जो है वीडियो अच्छा भी लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच।